Hello everyone, my name is Vipra Joshi and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Electrical Engineering Department. So, I am going to deliver lecture on subject of Control System Engineering. In this video, I will going to explain steady state error. Steady state error is very important topic for GATE also. So, what is the steady state error? It is the error at which time t goes to infinity. So, it will measure the accuracy of the system. We can say that if your actual output is not matching with the input, then the difference between those two, it means input and output, is called the steady state error. Generally, it is arise from first the nature of the input. It means our input is which type. It can be unit step, it can be unit ramp or periodic signal. Second thing, the type of the system, type 0, type 1, type 2 and so on. Third, for non-linearity of the system component. This is why the error is generated. Let us move on the second point. We have to calculate the steady state error. For this, we can observe the block diagram. This block diagram. Here, RS is the input of the signal and ES is the error signal. GS is the forward path gain. CS is the output of the signal and HS is the unity feedback signal, means feedback signal. Here we consider that the feedback signal is unity. Okay, we know that ES equal to RS minus CS into HS. By equation 1, we put the value of CS in equation 1 and CS is the combination of ES into GS. ES into GS. जब हम CS की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में तो हम ये फाइंड करेंगे कि ES इक्वल टू RS माइनस ES इंटू GS इंटू HS. यहाँ हम ES कॉमन ले सकते हैं. जब ES कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ये माइनस वाली टर्म्स इधर आएगी तो क्या बचेगा 1 प्लस GS इंटू HS equal to RS. By this we can find that ES equal to RS upon 1 plus GS into HS. इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा ES है वो डिपेंड करता है इनपुट ऑफ द सिग्नल मीन्स RS and gain of the signal GS and feedback of the signal. The ratio of ES upon RS equal to 1 upon 1 plus GS into HS. We can say that the steady state error of the system is obtained by applying final value theorem. Final value theorem क्या होती है? ESS equal to limit ET equal to T tends to 0. Means जो हमारा error signal है उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है कब? जब t टेंस टू इन्फिनिटिव है.
यही तो स्टेडी स्टेट एरर है कि जब t टेंस टू इन्फिनिटी है तब क्या वैल्यू है एरर की. In time domain, we can see that ESS equal to limit ET, t tends to infinity, and in frequency domain, we can say that limit S tends to 0, S into ES. And फिर हम क्या करेंगे, ES की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ES की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS. ओके, ये हमें मिला. लेकिन हम जानते हैं कि फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम HS इक्वल टू 1, तो HS की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ESS इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0, S इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS. तो it is clear that steady state error depend upon the input of the system and the open loop transfer function of the system. अगर हमारी HS की वैल्यू फीडबैक की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारा क्या बन जाएगा सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, ESS इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0, S इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS. This formula is used for some problem in future. It will be define the accuracy of the system. So why we get steady state error? Because of type of the system and nature of the system and non-linearity of the system. So like this we can calculate the value of the steady state error. After that we can calculate the value of steady state error when the input is unit step signal. Then the steady state error, what? We know that according to the final value theorem, ESS equal to limit S tends to 0, S into ES. And where we know that ESS equal to RS upon 1 plus GSSH. But for unit step input, RT is the error signal. Unit step signal. तो RT इक्वल टू UT इन टाइम डोमेन. अगर हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, RS इक्वल टू 1 अपॉन S. तो फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल द वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल इज़ 1 अपॉन S. हम RS की ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, ESS इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0, S इंटू ES. ES की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी तो S से S हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया. तो हमें क्या मिला, हमें मिला लिमिट S टेंस टू 0, 1 अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS. या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस लिमिट S टेंस टू 0, HS इंटू GS. हमने ये डिनोट कर लिया लिमिट, ये वाला पार्ट लिमिट S टेंस टू 0, GS इंटू HS किससे, KP से. KP को हम बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, और KP की वैल्यू हो गई लिमिट S टेंस टू 0, GS इंटू HS.
अब हम ये फाइंड करेंगे कि जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिफरेंट इनपुट के लिए क्या है, मीन्स डिफरेंट सिस्टम के लिए क्या है, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम और टाइप 2 सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 0 सिस्टम विथ यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आर एस क्या होता है, आर एस इक्वल टू 1/s, ठीक है। For type 0 system, we know that GS into HS equal to K 1 plus ST1, 1 plus ST2 and so on upon 1 plus STA bracket 1 plus STB. It is the zero of the system, it is the pole of the system. Here s की power n is the number of pole at origin. अगर हम टाइप 0 सिस्टम कंसिडर करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, जो n इक्वल टू है वो होगा हमारा 0, तो s की पावर 0 इक्वल टू 1, एंड टाइप 1 सिस्टम n इक्वल टू 1 एंड टाइप 2 सिस्टम n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, टाइप 0 सिस्टम। टाइप 0 सिस्टम के लिए s की पावर 0 इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, k इंटू 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस टी 2 अपॉन 1 प्लस एस टी ए 1 प्लस एस टी बी। n इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन। ओके, देयर इज नो पोल एट ओरिजिन इन टाइप 0 सिस्टम। अब हमें पता है कि के पी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, के पी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस। लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से हम एस, अब लिमिट क्या है हमारा, एस टेंस टू 0 है, तो एस की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो भी कांस्टेंट आएगी, जो नीचे जो वैल्यू आ रही है पोल्स में वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ से हम ये फाइंड करेंगे कि जो के पी की वैल्यू है वो एक क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी के, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा, यहाँ कुछ कांस्टेंट होगा, कट के भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो के पी की वैल्यू यानी कि जो पोजीशन, एक सेकेंड, इट मीन्स स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू हमारी के आई है। तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे के पी की जगह पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, ई एस एस इक्वल टू 1/1 प्लस के पी। के पी की वैल्यू हमने कांस्टेंट ऐड कर दी, यानी कि हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आ गया, 1/1 प्लस के। इसका मतलब ये भी हमारा क्या आया, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आई। हैंस फॉर द टाइप 0 सिस्टम द स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट के पी इज फाइनाइट। इसका मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी टाइप 0 सिस्टम के लिए। अब हम देखेंगे, अब टाइप 1 सिस्टम के लिए हम देखेंगे टाइप 1 सिस्टम। पहले हमने देखा टाइप 0 सिस्टम, अब हम देखेंगे टाइप 1 सिस्टम विथ यूनिट स्टेप इनपुट। टाइप 1 सिस्टम के लिए n की वैल्यू क्या होगी, अभी बताया था कि हमारे पास क्या होता है, s की पावर n होता है, तो n इक्वल टू 0 फॉर टाइप 0 और n इक्वल टू 1 फॉर टाइप 1। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, s मिलेगा। तो जी एस इंटू एच एस इक्वल टू के 1 प्लस एस टी 1 ब्रैकेट 1 प्लस एस टी 2 एंड सो ऑन अपॉन s इंटू 1 प्लस एस टी ए एंड 1 प्लस एस टी बी एंड सो ऑन। हमें पता है के पी इक्वल टू
लिमिट s टेंस टू 0 GS इंटू HS। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसकी लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे तो हमारी s की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी, जिससे कि जो डिनोमीटर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो 1/0 क्या हो गया, 1/0, ऊपर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी होगी हमारी k की, तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी kp की वैल्यू मीन्स पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू, पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटिव हो गई। s की वैल्यू हमने 0 रखी तो नीचे वाला पार्ट 0 आ गया, ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, मैथ्स की टर्म्स है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो हम ये इन्फिनिटिव वैल्यू रख देंगे ESS इक्वल टू 1/1 प्लस KP। KP की जगह पे अगर हम इन्फिनिटिव रखेंगे KP के प्लेस में तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। वैल्यू बहुत बड़ी है इन्फिनिटी की, उसमें कोई भी कांस्टेंट आप ऐड करोगे 1 2 3 4 और 1000 2000, बट वो आएगा इन्फिनिटी। वैसे हमने यहाँ पे 1 ऐड करना है, ठीक है, तो वो इन्फिनिटिव होगा। तो 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0। यानी कि इट मीन्स फॉर टाइप 1 सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखेंगे टाइप 2 सिस्टम के लिए। टाइप 2 सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप इनपुट GS इंटू HS क्या हो जाएगा, K 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 एंड सो ऑन अपॉन S की पावर n। टाइप 2 सिस्टम में मीन्स n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 होगा, यानी कि s का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट 1 प्लस STA 1 प्लस STB। पोजीशन एरर कांस्टेंट क्या था हमारा, KP इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 GS इंटू HS। लिमिट s टेंस टू 0 K 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 अपॉन S स्क्वायर 1 प्लस STA 1 प्लस STB। अब हम यहाँ पे s की वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे और ऊपर भी हम s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा इन्फिनिटिव आ जाएगा। फिर हम ये वैल्यू KP की रखेंगे ESS इक्वल टू 1/1 प्लस KP। तो यहाँ पे जब हम इन्फिनिटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टाइप 2 सिस्टम के लिए भी स्टेडी स्टेट एरर क्या आ रही है, हमारी 0 आ रही है, और टाइप 1 के लिए भी 0 आई, बट टाइप 0 के लिए कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आई। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइप 0 सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर होगी, बट टाइप 1 और टाइप 2 में स्टेडी स्टेट एरर नहीं होगी। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, ठीक है, और वो यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए क्या होती है, और टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 सिस्टम के लिए क्या होती है। तो अब क्या था, स्टेडी स्टेट एरर क्या थी कि जब हमारा टाइम इन्फिनिटिव पहुंचेगा उस टाइम पे जो हम कैलकुलेट करेंगे एरर, वो हमारी क्या होगी, स्टेडी स्टेट एरर। और जनरली एरर सिग्नल हमारा इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है। कब है, जब हमारा आउटपुट क्या है, एक्यूरेट नहीं है, मीन्स इनपुट के अकॉर्डिंग वो जो आउटपुट आना था वो ना आके उसकी वैल्यू जो आनी चाहिए थी, डिज़ायर वैल्यू, उससे वो अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम में कुछ एरर है। ओके, तो ये एरर सिग्नल
हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होता है जब मैच नहीं कर रहा होता है हमारा आउटपुट इनपुट से। तो स्टेडी स्टेट एरर हम फाइंड करते हैं t टेंड्स टू इनफाइनाइट में। और ये एरर हमारी किस वजह से आती है कि सिस्टम का इनपुट का नेचर अलग अलग है, हम अलग अलग इनपुट डालेंगे सिस्टम में, और हमारा जो टाइप है सिस्टम के जो ऑर्डर हैं वो अलग अलग हैं, और जो कंपोनेंट कंट्रोल सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं उस पूरे सिस्टम को बनाने में जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उन सब की नॉन लीनियरिटीज़ की वजह से कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से नॉन लीनियरिटी आ जाती है। फिर हमने देखा स्टेडी स्टेट एरर डायग्राम, उससे हमने कैलकुलेट करा कि जो ES है, जो हमारा एरर सिग्नल है, वो RS/1 + GS × HS है। फिर हमें पता है फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ESS = लिमिट ET t टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब हमारा टाइम डोमेन है। अगर हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज कर रहे हैं तो S टेंड्स टू 0। उसके बाद हमने ये फाइंड किया कि हमारा ESS क्या आता है, लिमिट S टेंड्स टू 0 S × RS/1 + GS। यहाँ से हमने ये देखा कि RS और GS पे क्या डिपेंड करता है, हमारा एरर डिपेंड करती है। उसके बाद हमने स्टेडी स्टेट एरर निकाली जब हमारा इनपुट सिग्नल क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए हमारा क्या होता है, RT = UT होता है। अगर हम उसको टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकाले तो 1/s होता है। वैल्यू निकाल के हमने ये फाइंड किया था कि स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट क्या था, लिमिट S टेंड्स टू 0 GS × HS। फिर हमने निकाला टाइप 0 सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप इनपुट क्या होता है, ESS की वैल्यू क्या होती है, 1/1 + K। तो टाइप 0 के लिए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और टाइप 1 सिस्टम के लिए एरर सिग्नल की वैल्यू 0 आती है, और टाइप 2 सिस्टम के लिए भी एरर सिग्नल की वैल्यू 0 आती है। अब हम स्टेडी स्टेट एरर एंड पोजीशन एरर कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय GS = 50/1 + 0.1s × S + 10. Determine the static error coefficient Kp. ओके, तो इसमें क्या है, HS की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम में HS की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे GS × HS की वैल्यू ये दी है। ये कंबाइंड वैल्यू है GS × HS की। KP हमें KP फाइंड करना है। हमें पता है KP = क्या होता है, लिमिट S टेंड्स टू 0 GS × HS। GS × HS की वैल्यू हम यहाँ से पे पुट करेंगे, ठीक है। फिर हमें कैसे हम KP निकालते हैं, लिमिट S टेंड्स टू 0। तो S की जगह पे अगर हम जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 + 0 = 1 और 10 + 0 = 10। तो 50/10 = 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे KP की वैल्यू, पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय GS = 5 × S² + 2S + 100 upon S² + S + 5 × S² + 3S + 10. Determine the value of KP. We know that KP = S टेंड्स टू 0 GS × HS। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, GS × HS की वैल्यू रखेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ओके। और फिर हमें क्या लगानी है, लिमिट S टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हम S की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसमें इस क्वेश्चंस में हमारी जो फॉर्म बनेगी 0 पुट करने के बाद 5/0 की कुछ वैल्यू बनेगी इनटू सम कांस्टेंट। तो नीचे वाली वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो कोई कांस्टेंट अपॉन 0 की फॉर्म क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। तो यहाँ पे हमारी Kp की वैल्यू इन्फिनेटिव आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन is given by gs equal to 20 upon s into s plus 2 s square plus 2s plus 20. Determine the steady state error for, इसमें हमें 3 के लिए वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा इनपुट आर टी इक्वल टू 5 है, फिर देन आर टी इक्वल टू 5t आएगा, और फिर थर्ड आर टी इक्वल टू 3t² अपॉन 2 आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट के लिए, जब आर टी इक्वल टू 5 होगा तो हमें पता है ये टाइम डोमेन में है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में है। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, इसका इनपुट भी फ्रिक्वेंसी डोमेन में। तो आर एस की वैल्यू क्या आएगी, 5/s। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल 1 होता है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में 1/s होता है। ये पहले पढ़ाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा क्या करना है, हमें ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई एस। एस की वैल्यू, एस अभी नहीं एस ही रखेंगे, फिर ई एस की वैल्यू हमें पता है, ई एस इक्वल टू क्या होता है, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। अब यहाँ पे जो आर एस की वैल्यू होगी वो आएगी 5/s। जब हम आर एस की वैल्यू आर एस की वैल्यू 5/s रखेंगे तो एस से एस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और हमारा क्या था, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो 1 प्लस जी एस इंटू एच एस की वैल्यू हमें जो दी है वो ये दी है। ठीक है, फिर हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 1 के साथ। तो ये हमारी इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी, s इंटू एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 20 अपॉन s इंटू एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस 20। अब हम यहाँ पे s इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब s इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला s से हमारा ये s कैंसिल। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पूरी s से s कैंसिल है, बट यहाँ पे जब आप s की वैल्यू रखोगे तो ये इनटू में भी है, यहाँ पे ये वाला s प्लस 2 इसके साथ इनटू में, तो ये पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ई एस एस की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम देखेंगे सेकेंड इनपुट के लिए, जब आर टी इक्वल टू था हमारे पास 5t। जब हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आर टी इक्वल टू आएगा 5/s²। फिर हम सेम उसी इक्वेशन में रखेंगे, ई एस एस इक्वल टू एस टेंस टू 0 एस इंटू ई एस। ई एस क्या था, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो आर एस की वैल्यू यहाँ पे हमारी थी 5/s² अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस की वैल्यू ये आ गई। फिर हम सेम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट तो हमारा सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एस से एक एक्स कैंसिल। तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्म आएगी वो आएगी 5/s की, 5/s इंटू ये पूरा पार्ट। तो जब हम इसमें s टेंस टू 0 रखेंगे तो हम देखेंगे ई एस एस की वैल्यू आएगी 10। आप कैलकुलेट करना, तो इसमें सेम वैल्यू ई एस एस की आएगी 10। तो इसका मतलब फॉर द इनपुट ऑफ आर टी इक्वल टू 5t द स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू 10। फिर थर्ड था आर टी, जब हमारा जो इनपुट था वो था आर टी इक्वल टू 3t² अपॉन 2। इसका जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन निकालेंगे तो वो आएगा 3/s³। इसे फिर हम सेम उसी इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे s इंटू ई एस की वैल्यू थी आर एस की जगह पे हमने रखा 3/s³ अपॉन 1 अपॉन जी एस 1 प्लस जी एस इंटू एच एस की वैल्यू
ये आई ए, इससे एक एस से एक एस कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा 3/s² की फॉर्म आएगी। तो जब हम s इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1/0 की वैल्यू या कांस्टेंट अपॉन 0 की वैल्यू, जो कि हमें ESS जो है स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की वैल्यू देगा, वो हमें इन्फिनेटिव देगा। ओके, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि केवल पोजीशन एरर कांस्टेंट और स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहे थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।